are doing our machines. डीसी मशीन सबको समझ में आ गया। डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन समझ में आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फंडा समझ में आया। ट्रांसफार्मर कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर का अभी तक हमने बहुत सारा पार्ट देखा है, नो लोड कंडीशन में देखा है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, मस्ट कंडीशन क्या है ट्रांसफार्मर के अंदर वर्किंग करने के लिए, कि उसके कोर पे जो फ्लक्स सेटअप होता है, दैट फ्लक्स मस्ट बी क्या होना चाहिए, ट्रांसफार्मर के कोर पे जो फ्लक्स सेटअप होता है, दैट फ्लक्स मस्ट बी कांस्टेंट एंड टाइम वेरिंग, constant in magnitude and time varying. To maintain this constant flux, we know when we are passing current from primary this current is having some individual components to serve individual or compensate individual task. तो ये प्राय অসমীয়াতে কলে কাবার प्रॉब्लम আছে ना, कोई था ना, उसको समझ में नहीं आता। चलो ठीक है। This primary current is having its own role and it is there to serve various tasks. Primary task is to set up the magnetic flux inside the core. To set up the magnetic flux, we know that I mu component of the current is coming through the primary coil, magnetizing component, and this magnetizing component is 90° out of phase of the primary voltage, supplied voltage. And we know that when this flux is linking with our primary turn or secondary turn, then an induced EMF is developed in the primary as well as in the secondary. While an induced EMF is developing in primary, it will try to flow another current, induced current, in the primary, so that this current produces a flux that opposes this main field flux. Since we have not yet connected any load in our secondary, so there will be no current in our secondary, but induced EMF will be there. So the terminal voltage that we will get here in the secondary side, this will be equal to E2 because there is no current right now. The induced EMF here will not be exactly equal to V1 because there will be some drop, because there will be some current. Due to this current, since there is some winding resistance and winding inductance, reactance, for these two components, there will be some voltage drop and the E1 will be less than V1. But the loss is or drop is very less because the component I mu, it is growing for magnetizing purposes, very less, and another component which is called IW, core loss component, due to eddy current and hysteresis loss, that is also very, very small. Thus, we can say V1 is equal to E1 and V2 is equal to E2. Now, while we connect load here, then we know that I2 current will start flowing through this secondary, and this I2 current will produce another flux phi 2, or we can say this will create an MMF N2 into I2. Exactly, that the term we use, that the flux phi 2 is cancelling out flux phi, it is a wrong term, because flux cannot cancel each other, but it is the force, that MMF, magnetomotive force, that is acting
on the dipoles in two different ways. So one MMF for the main flux phi is acting in this direction. Another MMF N2I2 is acting on the opposite direction. So they are balancing each other, and the dipole is trying to shift in this way, and the MMF linked with my primary is now changing or reducing, start reducing. The moment primary coil realize that the MMF inside it is going to reduce, so as per Lentz's law, it will try to oppose the cause. The cause to reduce this MMF here in the primary is N2I2. So primary coil will start generating another MMF against this N2I2, and that amount is called N1I1 dash. This much of primary MMF is called load component. I1 dash is the load component of current. So primary coil start drawing extra current, that is called I1 dash, which is called load component of current. And this I1 dash is proportional to I2. This is proportional to I2. Thus, this MMF N1 I1 dash will be balancing out N2 I2 dash, so that the flux phi remains constant inside the core. Now we have also seen that this flux or flux density Bm depends on voltage applied and the frequency of the applied voltage. It depends on the voltage and frequency. So the ratio of V by F must be constant for a smooth operation of a transformer. If the V by F ratio changes, then the operation inside the core will also change. If frequency drops, then maintaining the voltage constant, if frequency drops, then the flux density will increase, and it will lead the transformer core to go to the कौन सा deep saturation. So the transformer core will go into the deep saturation mode, means the amount of current that we need to reverse the dipole will be more. So deep saturation will increase the magnetizing component of current. I mu will increase. Is not it? So this much is very clear to us right now. Then we have seen that in both the coil there are two components. One is called resistance. Since the conductors are made up of copper or aluminum, so it definitely have some resistances R1 and R2. And since it is an inductor coil, so and the applied voltage is an alternating one, so there will be some inductive effect that we are representing as XL, X1. Okay. So this will be X2. So this much of inductive effect will be there. And then we have seen that the effect of resistance in the transformer, and we have seen that how we can shift the primary resistance to secondary or secondary resistance to primary. We have already done all these things. Is that it? पूरा clear सबको? बढ़िया से? Yes, sir. चलो ठीक. तो आज का ये लिखो, effect of leakage reactance. Effect of magnetic चलो लिखते हैं, effect of magnetic leakage flux
effect of magnetic leakage flux on the operation of transformer. So last day हमने effect of resistances, winding resistances देखा था, और उसमें हमने देखा था कि पर यूनिट रेजिस्टेंस ड्रॉप, हाँ, पर यूनिट रेजिस्टेंस ड्रॉप with respect to primary remains same as the per unit of resistance drop across secondary. हमने ये देखा था कि जब हम रेजिस्टेंस को प्राइमरी से सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी से प्राइमरी शिफ्ट करेंगे तो हमारे ध्यान में ये रहे कि उस रेजिस्टेंस के वजह से जो कॉपर लॉस हो रहा था वो कॉपर लॉस सेम रहे, तब जाके हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम उस हिसाब से सेट कर रहे थे, है ना। सो नाउ व्हाट इज लीकेज, मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स? टेल मी, व्हाट इज leakage flux? We know that the winding primary and secondary are wound on some metallic core that has high permeance. Permeability जिसका हाई है वैसा एक मैग्नेटिक कोर पे हम लगाते हैं, so that maximum flux goes through this core. But there will be some flux, there will be some flux that will definitely go through the air nearby and will link only one coil, only one coil. Though the amount of flux that is leaking up is very small, but still there will be. If we do not take proper care while constructing the transformer, then this can go, this can increase. So we must take very much cautious about this कि ये जो लीकेज फ्लक्स है ना वो थोड़ा कम रहे। तो उसके लिए क्या क्या करना है? मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स किस चीज पे डिपेंड करता है? क्या ये लोड डिपेंडेंट है और लोड इंडिपेंडेंट है? Whether the leakage flux increases with load or decreases with load. तो लिखो लिखो लिखो। Magnetic flux is the part of the load component of flux. Magnetic flux, sorry, magnetic leakage flux. Magnetic leakage flux is the part of the load component, the part of the load component flux which links only one winding, either high voltage side or low voltage, and not both. दोनों को लिंक नहीं करता है। सर कोई बार रिपीट कर दीजिए। Magnetic leakage flux is the part of the load component flux, is the part of the load component flux that connects only one winding and not both the winding. किसी भी एक वाइंडिंग को लिंक करता है, not both the winding. और अगर लिंक नहीं कर रहा है, that means हो गया लिखा। Thus it does not contribute in power transfer. It does not contribute in power transfer. ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफर कौन कर रहा है? Thus it does not, देखा ना, thus it does not contribute in power transfer. ठीक है। लीकेज फ्लक्स क्या है? लीकेज फ्लक्स वो फ्लक्स है, मेन कंपोनेंट लोड कंपोनेंट का वो फ्लक्स है जो
किसी भी एक कॉइल को लिंक करता है, दोनों कॉइल को लिंक नहीं कर रहा है। क्योंकि दोनों कॉइल को लिंक नहीं कर रहा है, इसका मतलब पावर को ट्रांसफर नहीं कर रहा है। ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफर कैसे हो रहा है? ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफर होता है थ्रू मैग्नेटिक कपलिंग। ये फ्लक्स ही है, सेम फ्लक्स जो लिंक कर रहा है दोनों कॉइल को, तो यहां से पावर को यहां पे ट्रांसफर कर रहा है ना। और ये जो लीकेज फ्लक्स हम बोल रहे हैं, इसको कौन सा कंपोनेंट बोल रहे हैं? कंपोनेंट ऑफ द लोड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स। जब लोड नहीं है तो लीकेज फ्लक्स बहुत कम होगा। लोड जैसे जैसे बढ़ेगा तो लोड का है, क्योंकि मेरा फाई तो कांस्टेंट है, फाई मेरा कांस्टेंट है ना, अभी अभी देखा। तो जब नो लोड कंडीशन में है तो फाई ही रहेगा इसमें। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें सेचुरेशन आएगा कोर में, और सेचुरेशन के बाद एक टाइम पे लीकेज फ्लक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब लीकेज फ्लक्स, लिखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, लीकेज फ्लक्स increases, leakage flux increases with load. Leakage flux increases with load. That is, leakage flux depends on load, and it is independent of applied voltage. Leakage flux is independent of applied voltage, whereas main field flux depends on applied voltage. Main field flux depends on applied voltage and is independent of load. So मेरा मेन फील्ड फ्लक्स जो है वो लोड इंडिपेंडेंट है। ये तो फाई ही रहेगा। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा I2 बढ़ेगा, N2 MMF बढ़ेगा। जितना MMF इधर से बढ़ेगा N1 I1 डैश MMF ऑपोजिट डायरेक्शन पे बढ़ेगा, इसको कैंसिल आउट करेगा। तो मेरा मेन फील्ड फ्लक्स फाई जो है इट विल रिमेन कांस्टेंट, बट लीकेज फ्लक्स डिपेंड्स ऑन लोड। एक टाइम के बाद क्या होगा, ये तो 5 जनरेट हो गए, जितना 5 जनरेट होना था सारे डाइपोल्स हो गए। उसके बाद और अगर ज्यादा आएगा तो जैसे जैसे इधर से करंट ड्रॉ करोगे तो प्राइमरी का करंट बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एयर से लीक करना शुरू करेगा यहाँ पे, और कोर में जगह नहीं। सो हमको याद रहेगा कि लीकेज फ्लक्स जो है वो लोड डिपेंडेंट है, वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज इंडिपेंडेंट है, और जो मेन फील्ड फ्लक्स है वो लोड इंडिपेंडेंट है एंड अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करता है। क्लियर दिस मच एवरीवन? Yes, sir. Next point, magnetic leakage flux is always, or are always, magnetic leakage fluxes are always in phase with their respective currents. Flux and current हमेशा in phase component होता है, so they are in phase with their respective currents in the winding. मतलब प्राइमरी लीकेज फ्लक्स जो है वो प्राइमरी करंट पे डिपेंड करेगा, सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स सेकेंडरी करंट का इन फेज रहेगा। क्लियर? Sir, in phase with their respective currents in the winding, in phase with the respective currents in the winding में जो करंट पास करेगा उसी के फेज, सेम फेज पे रहेगा मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स बोलो या फिर फ्लक्स, दोनों। The induced EMF
due to these leakage fluxes, due to these leakage fluxes, करंट के साथ क्या होगा बताओ? इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो इस लीकेज फ्लक्स के लिए जो फ्लक्स है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो इस लीकेज फ्लक्स के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो मेरा करंट के साथ क्या फेज बनाएगा? लेगिंग होगा, लीडिंग होगा, सेम फेज पे रहेगा, क्या होगा बताओ? जो लीकेज फ्लक्स के वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ is lagging, leading or in phase with the current. leg, lagging, Induced EMF is always lag by 90 degree with the flux. So induced EMF is always lag behind the respective currents. फ्लक्स और करंट सेम फेज पे रहेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 90 डिग्री लैग कर जाएगा, है ना? तो चलो देखो, इफेक्ट ऑफ लीकेज रिएक्टेंस में, इफेक्ट ऑफ लीकेज फ्लक्स हो गया। अब लीकेज फ्लक्स को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक लीकेज रिएक्टेंस दिखाते हैं ना। लीकेज फ्लक्स क्या करता है? लीकेज रिएक्टेंस क्रिएट करता है, और लीकेज रिएक्टेंस को हम अपना प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल से अलग कर लेते हैं, अलग करके दिखाते हैं रिएक्टेंस को फॉर द शेक ऑफ कैलकुलेशन। तो कॉइल से अलग करके मैंने लीकेज फ्लक्स दिखाया, और लीकेज फ्लक्स का के वजह से लीकेज रिएक्टेंस आ गया, लीकेज फ्लक्स की वजह से लीकेज रिएक्टेंस आ गया। तो ये जो हम यहाँ पे दिखाते हैं ये क्या है? इट इज ड्यू टू लीकेज फ्लक्स। सो लिखो इफेक्ट ऑफ लीकेज रिएक्टेंस, इफेक्ट ऑफ लीकेज रिएक्टेंस। देखो, in order to compensate the drop due to leakage flux, in order to compensate the drop due to leakage flux, imaginary inductive reactances are assumed, imaginary inductive reactances are assumed in series with respective windings, in such a way that the magnitude of drop across reactances, is equal to the EMF induced, due to the leakage flux. EMF induced due to the leakage flux. क्या बोल रहा हूं कि in order to compensate, पढ़ो फिर से, in order to compensate the drop due to the
leakage flux, imaginary inductive reactances are assumed in series with respective windings in such a way that the magnitude of drop across the reactances is equal to the EMF in the winding due to leakage flux. ठीक है, सो पकड़ लो, अगर मेरा EX1, ये X1 है, इंड्यूस्ड EMF EX1 होता है, EX1, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, EX1 का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? अगर मैं बोलता हूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ EX1 है ड्यू टू लीकेज फ्लक्स इन द प्राइमरी, यहाँ पे ये लीकेज फ्लक्स भी तो ऑल्टरनेटिंग होगा, चेंज होता रहेगा, तो ये कॉइल, इसी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ रहा है, EX1 आ रहा है। अब इस EX1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? कितना होना चाहिए? एनीवन? भाई I1 करंट पास हो रहा है, सो I1 इंटू X1 होगा, होगा कि नहीं होगा? X1 हम लीकेज रिएक्टेंस बोल रहे हैं, तो लीकेज रिएक्टेंस के वजह से ड्रॉप कितना होगा यहाँ पे, क्योंकि प्राइमरी से I1 करंट पास हो रहा है तो इट विल बी I1 X1, सेकेंडरी से I2 करंट पास हो रहा है, इसका मतलब सेकेंडरी का ड्रॉप कितना होगा, I2 X2, इतना ड्रॉप होगा, और हम उसी ड्रॉप दिखा रहे हैं यहाँ पे, जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो रहा था उसी को तो यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, समझ में आया? तो X1 का वैल्यू कितना होगा, X1 विल बी EX1 बाई I1 होगा। नोट कर दो। तो अभी देखो, यहाँ पे हमने V1 अप्लाई किया, अभी रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को देखा है, बाद में कंबाइन करते हैं। V1 अप्लाई किया तो I1 करंट फ्लो हो रहा है, I1 की वजह से यहाँ पे कितना ड्रॉप हो जाएगा, I1 X1 ड्रॉप होगा, यहाँ पे क्या होगा, E1 इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा, तो KVL लिखने से क्या लिखोगे, V1 क्या हो जाएगा, ये प्लस की माइनस, माइनस I1 X1 माइनस E1 इक्वल टू 0, और आई कैन से V1 इक्वल टू E1 प्लस I1 X1, और I1 X1 मतलब EX1। सो हियर द टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपको मतलब है E प्लस EX1 होगा, एक्जैक्टली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये तो यहाँ पे तो हम दिखा रहे हैं सर्किट पे, यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है ना, जो होना है इसमें हो रहा है, तो एग्जैक्टली ये यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये तो इमेजिनरी हम दिखा रहे हैं रिएक्टेंस। हो क्या रहा है यहाँ पे, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ रहा है, E प्लस EX1, समझ गए? प्लस आपका जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टेंस की वजह से वो भी प्लस होगा यहाँ पे। एम आई क्लियर? तो अगर मैं विथ रेजिस्टेंस ड्रॉप लिखता हूं, विदाउट विथ रेजिस्टेंस ड्रॉप, हमको क्या मिलेगा, V1 इज इक्वल टू क्या क्या मिलेगा बताओ, E1 प्लस, और क्या ड्रॉप हो रहा है,
I1 R1 प्लस I1 X1। तो I1 X1 क्वाड्रेचर कंपोनेंट है। हम लोग इन जनरल एक्स को क्या कैसे दिखाते हैं, जे जे कनेक्ट कर देते हैं जे ऑपरेटर को, तो जे X1 लिख सकते हैं। यहां से अगर मैं I1 को कॉमन ले लू, E1 प्लस I1, तो क्या आ जाएगा R1 प्लस JX1 एंड दिस इज E1 I1 इंटू Z1 होगा। क्लियर एवरीवन? एंड दिस सिमिलरली सिमिलरली V2 के केस में क्या होगा, V2 के यहाँ पे E2 आपका प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे I2 करंट पास हो रहा है, E2 के साथ ये जो रिएक्टेंस है उसका ड्रॉप यहाँ पे आएगा एक्चुअली में, ये कुछ है ही नहीं, है ना। हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं इसको। सो EX2 प्लस इसके साथ और क्या आता, रेजिस्टेंस का ड्रॉप भी ऐड हो जाता, सॉरी माइनस माइनस रेजिस्टेंस का ड्रॉप भी कर दो, तब जाके आपको क्या मिलता, टर्मिनल वोल्टेज, है ना। जैसे टर्मिनल वोल्टेज विल बी इक्वल टू E2 माइनस रिएक्टेंस का ड्रॉप EX2 माइनस रेजिस्टेंस का ड्रॉप ER2, तब जाके मुझको टर्मिनल वोल्टेज मिलता, उतना माइनस कर देता तो मैं इधर दिखा रहा हूँ V2 प्लस EX2 प्लस ER2, बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। सो V2 विल बी इक्वल टू, ये तो हो गया हमारा V1, V2 इज इक्वल टू V2 नो अरे E2, E2 will be equal to V2 plus I2 R2 plus I2 X2, और ये क्वाड्रेचर कंपोनेंट है, तो J I2 X2, है ना। सो दिस विल बी V2 plus I2 R2 plus J X2, और ये क्या हो गया, E2 इक्वल टू V2 plus I2 into J। And this Z1 and Z2 are called, क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस। लीकेज इम्पीडेंस। Z1 and Z2 are called leakage impedance, लीकेज इम्पीडेंस। ठीक है, अभी अपने को क्या करना है कि ट्रांसफर करना है। जैसे हमने रेजिस्टेंस को प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी को प्राइमरी में किया था, उसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंसेस को भी सेकेंडरी से प्राइमरी या फिर प्राइमरी से सेकेंडरी शिफ्ट कराते हैं। क्यों कराते हैं शिफ्ट, इसलिए करते हैं ताकि अपने कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए। तो एक साइड चला जाएगा सारा चीज, और जो ट्रांसफॉर्मर बचेगा वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा, इट विल बिकम एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो अब लिखो ट्रांसफर ऑफ रिएक्टेंस transfer of reactance from primary to secondary and secondary to primary or secondary to primary।
the condition that must be satisfied, the condition that must be satisfied while transferring leakage reactances from one side to another Sir, কওক। the condition that must be satisfied, the condition that must be satisfied while transferring leakage reactances from one side to another is, क्या होना पड़ेगा, per unit reactance PU, per unit reactance drop in primary, per unit reactance drop in primary नहीं, एक काम करो, per unit reactance drop before transfer equal to the per unit reactance drop after transfer. ठीक है, सो कंडीशन क्या होना चाहिए, हमने रेजिस्टेंस में भी देखा था कि पर यूनिट रेजिस्टेंस ड्रॉप मस्ट बी इक्वल, सो पर यूनिट रिएक्टेंस ड्रॉप बिफोर ट्रांसफर और आफ्टर ट्रांसफर मस्ट बी इक्वल. This is the condition that we need to satisfy while transferring from primary to secondary or secondary to primary. So what is primary per unit reactance, per unit reactance or reactance drop of primary. बताओ प्राइमरी का पर यूनिट रिएक्टेंस ड्रॉप कितना होगा? जोर से कॉन्फिडेंटली बोलो ना. Reactance drop in primary divided by base voltage. हाँ, तो कितना होगा? रिएक्टेंस ड्रॉप कितना है प्राइमरी में? I1X1. So I1X1 is the reactance drop divided by base. बेस कौन सा लेंगे प्राइमरी का? वोल्टेज. कौन सा वोल्टेज? V1 होगा, V1 U1. ठीक है, सो सिमिलरली पर यूनिट रिएक्टेंस ड्रॉप इन सेकेंडरी क्या होगा? I2X2 बाई होगा. अभी ट्रांसफर ऑफ रिएक्टेंस अगर मैं सेकेंडरी से प्राइमरी करता हूं, ट्रांसफर ऑफ रिएक्टेंस फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी, तो सेकेंडरी से उठा के मैं कहां पे लेके आ रहा हूं? प्राइमरी में लेके आ रहा हूं. मतलब I2X2 बाई E2, I2X2 बाई E2, इस रिएक्टेंस ड्रॉप जितना है उतना जब मैं प्राइमरी में X2 को रखूंगा तो X2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? X2 डैश बोल देता हूं कि कुछ नया वैल्यू मुझको दिखाना पड़ेगा ना X2 में. कंडीशन क्या है कि जो पर यूनिट ड्रॉप यहाँ पे है वो बराबर हो. तो कितना होना चाहिए? I2 होगा कि 1 होगा? यहाँ पे टू होगा कि 1 होगा? हमने क्या किया, सेकेंडरी से प्राइमरी में शिफ्ट कर दिया है.
सेकेंडरी से इस x2 को उठा के मैं प्राइमरी में दिखाना चाहता हूँ। प्राइमरी में ऑलरेडी मेरा x1 है ना, लीकेज रिएक्टेंस x1 है। मैं x2 को यहां से हटा के यहाँ पे लाना चाहता हूँ। तो मुझको ये जानना है कि यहाँ पे तो इसका वैल्यू x2 था, इसको जब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ x2 डैश सेम तो रहेगा नहीं, कुछ तो चेंजेस होगा ना प्राइमरी में दिखाने से। सो x2 डैश बोल रहा हूँ। अब दिमाग में ये आ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, कैसे निकाले। तो हमने बोला कि भाई पर यूनिट ड्रॉप जो होगा इस रिएक्टेंस के वजह से वो बिफोर एंड आफ्टर सेम होना चाहिए। रिएक्टेंस ड्रॉप सेम हो, तो सेम होने के लिए हम इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे रखने से इसमें रिएक्टेंस ड्रॉप अभी कितना हो रहा है, पर यूनिट रिएक्टेंस ड्रॉप कितना हो रहा है, I1 x2 डैश बाई E1। तो I1 x2 डैश बाई E1 ये बराबर होना चाहिए। तो मेरा x2 डैश का वैल्यू कितना आएगा, x2 डैश विल बी इक्वल टू, इसको इस साइड लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा E1 बाई E2। I2 ऊपर है, ये I1 आ जाएगा नीचे इंटू x2 होगा। E1 बाई E2 एंड I2 बाई I1 इक्वल टू व्हाट, E1 बाई E2 मतलब E1 बाई E2 A को क्या होगा, लिखते हैं, A 1/k। A। I2 बाई I1 A, तो क्या हो गया A स्क्वायर इंटू x2। रेजिस्टेंस के केस में क्या था, जब सेकेंडरी से उठा के हमने रेजिस्टेंस को प्राइमरी में रख दिया तो क्या किया था, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, है ना। रिएक्टेंस को जब हम लिख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते रहे। सिमिलरली जब मैं प्राइमरी रिएक्टेंस को उठा के सेकेंडरी में रख दूंगा, देखना चाहता हूं, तो ए स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि प्राइमरी का जो पर यूनिट रिएक्टेंस होगा वो होगा आपका I1 x1 बाई E1 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू, जब मैं सेकेंडरी में रख रहा हूं उसमें से करंट फ्लो करेगा I2 और मैं बोल रहा हूँ x1 डैश और ये हो जाएगा E2। अब सेम x1 डैश जो होगा उसका वैल्यू सेम टू सेम मिलेगा मुझको E2 बाई E1 एंड I1 बाई I2 इंटू x1, और E2 बाई E1 का मतलब होता है k या फिर 1 बाई a। I1 बाई I2 मतलब 1 बाई a, तो ये हो जाएगा 1 बाई a स्क्वायर इंटू x1, है ना। तो जब मैं सेकेंडरी से प्राइमरी शिफ्ट कर रहा हूं तो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, जब मैं प्राइमरी से सेकेंडरी लेके जा रहा हूं तो a स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, रिएक्टेंस शिफ्ट हो जाएगा। हो गया। तो मेरा टोटल लीकेज रिएक्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी मतलब सेकेंडरी में कोई लीकेज रिएक्टेंस ही नहीं है, विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी लिखो। लीकेज रिएक्टेंस, टोटल लीकेज रिएक्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी, और इसको लिखेंगे जैसे x01। Total leakage reactance with respect to primary is denoted by x01 is equal to, प्राइमरी में कितना था पहले का, x1 है ही, अब हमने शिफ्ट करा दिया x2 को, x2 डैश, x1 प्लस x2 डैश टोटल रिएक्टेंस हो जाएगा इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डैश का मतलब क्या है, सेकेंडरी से प्राइमरी पे लाए हैं, सेकेंडरी से प्राइमरी मतलब s स्क्वायर से मल्टीप्लाई, सो s स्क्वायर
सिमिलरली टोटल लीकेज रिएक्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी लिखो, X02 हो जाएगा, X02 मतलब सेकेंडरी का रिएक्टेंस देख रहे हैं, सेकेंडरी साइड पे बैठ के कितना दिखेगा, एक तो सेकेंडरी का जो रिएक्टेंस है X2 वो रहेगा, साथ में प्राइमरी का रिएक्टेंस को शिफ्ट कराएंगे तो X1 डैश आ जाएगा, X1 डैश जो होगा उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, X1 बाई स्क्वायर, X1 बाई स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर? हो गया सबका? सो पर यूनिट रिएक्टेंस ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी क्या दिख रहा है मुझको, रेफर टू प्राइमरी साइड, देखो पर यूनिट और टोटल पर यूनिट रिएक्टेंस ड्रॉप, टोटल पर यूनिट रिएक्टेंस ड्रॉप रेफर टू प्राइमरी साइड कितना होगा बोलो, टोटल पर यूनिट रिएक्टेंस ड्रॉप रेफर्ड टू, इसको क्या बोल रहे हैं, रेफर्ड टू प्राइमरी, रेफर्ड टू प्राइमरी मतलब प्राइमरी में बैठ के देख रहे हैं, है ना, सारा प्राइमरी में शिफ्ट करा दिया, कितना हो जाएगा पर यूनिट में रिएक्टेंस ड्रॉप रेफर टू प्राइमरी साइड कितना होगा, बढ़ो, पर यूनिट रिएक्टेंस ड्रॉप रेफर टू प्राइमरी साइड, भाई प्राइमरी में करंट कितना है I1, प्राइमरी का टोटल रिएक्टेंस कितना है X01 डिवाइडेड बाई बेस वोल्टेज, बेस किसको लेते हैं, है स्क्वायर, क्या बोल रहे हैं, पर यूनिट पे लिख रहा हूं ना, पर यूनिट में क्या होता है, वैल्यू बाई इट्स बेस U1, पर यूनिट टोटल पर यूनिट रिएक्टेंस ड्रॉप विथ रेफर टू सेकेंडरी कितना होगा, टोटल पर यूनिट रिएक्टेंस ड्रॉप रेफर टू सेकेंडरी साइड I2 X02 divided by E2, ना हमारा कंडीशन क्या था कि पर यूनिट रिएक्टेंस ड्रॉप फ्रॉम बोथ साइड मस्ट बी सेम, बिफोर आफ्टर तो हमने सेम ही रखा था, तो इधर से इधर करो इधर से उधर करो दोनों सेम होना चाहिए, तो लिखो द स्टार मार्क के लिखो द पर यूनिट रिएक्टेंस ड्रॉप ऑन बोथ साइड्स इज सेम, पर यूनिट रिएक्टेंस ड्रॉप in both sides is same, that is I1 X1 X01 by E1 must be equal to I2 X02 by next line लिखो, in per unit system, in per unit system, per unit reactance drop, PU reactance drop is also called per unit reactance of the transformer. Per unit reactance drop is also called per unit reactance of the transformer. ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो, परसेंटेज रिएक्टेंस, percentage reactance of transformer, percentage
reactance of transformer with respect to primary, percentage reactance of transformer with respect to primary कितना होगा? With respect to primary, percentage x is equal to कितना होगा? into 100 होगा. I1 x01 divided by U1 into 100. I1 x 01. 01 with respect to primary, तो I1 x1 x01 divided by U1 U1. ये हो गया प्राइमरी का पर यूनिट रिएक्टेंस इनटू 100. सर ये ओनली रिएक्टेंस को बोलेगा क्या रिएक्टेंस ड्रॉप बोलेगा? अभी अभी लिखा है यही कि पर यूनिट रिएक्टेंस ड्रॉप is also called per unit reactance of the transformer. अच्छा अच्छा ठीक है. Per unit resistance drop is also called per unit resistance of the transformer. ठीक है? Clear? तो percentage reactance of transformer with respect to secondary कितना होगा? देखो percentage reactance of transformer with respect to secondary कितना होगा? सेकेंडरी में करंट कितना फ्लो कर रहा है? I2. टोटल रिएक्टेंस कितना है? X02. बेस वोल्टेज क्या है? E2 multiplied by 100. This is the percentage reactance of transformer with respect to secondary. And percentage reactance of transformer with respect to primary is equal to the percentage reactance of transformer with respect to secondary. Very, very important points. Percentage reactance of transformer with respect to primary is equal to the percentage reactance of the transformer with respect to secondary. Next line लिखो. Since percentage reactance on both sides of transformer, since percentage reactance on both sides of transformer is same, these can be easily transferred from one side to another side. Since percentage reactance on both sides of the transformer is same, दोनों साइड का परसेंटेज रिएक्टेंस क्या है? सेम है. Thus, this can easily be transferred from one side to another as compared to reactance in ohmic values, as compared to reactance in ohmic values. अगर हम रिएक्टेंस को ट्रांसफर करने जाते हैं, जब मैं रिएक्टेंस को ओमिक वैल्यूज में रख के मैं जब ट्रांसफर कर रहा था प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से प्राइमरी, तो मैंने देखा
कि मुझको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ए स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ रहा है। जब रिएक्टेंस शिफ्ट होता है प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से प्राइमरी, तो रिएक्टेंस का वैल्यू जो है वो चेंज होता है। लेकिन जब मैं उसको पार यूनिट सिस्टम में लेके जा रहा हूं, और जब मैं पार यूनिट सिस्टम में इसको डिफाइन करता हूं, तो क्या हो रहा है कि पार यूनिट रिएक्टेंस, परसेंटेज रिएक्टेंस या पार यूनिट रिएक्टेंस रिमेन सेम। सो परसेंटेज में डिफाइन करने से मैं प्राइमरी का बोलूं या सेकेंडरी का बोलूं, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं पार यूनिट सिस्टम में लाके। इसी कारण से हम लोग पार यूनिट सिस्टम को प्रेफर करते हैं। समझ में आया? दिस इज द रीजन व्हाई वी प्रेफर पार यूनिट सिस्टम, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, मुझको बार बार उस बात का ध्यान में नहीं रखना है कि ए स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ। मुझको सिर्फ पार यूनिट सिस्टम पता होना चाहिए कि परसेंटेज रिएक्टेंस कितना है, परसेंटेज रेजिस्टेंस कितना है इसका। सो परसेंटेज रेजिस्टेंस का मतलब होता है परसेंटेज रेजिस्टेंस ड्रॉप। परसेंटेज रिएक्टेंस का मतलब होता है परसेंटेज रिएक्टेंस ड्रॉप। परसेंटेज रिएक्टेंस ड्रॉप का मतलब होता है कि लीकेज रिएक्टेंस जो है, उसके वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया होगा, उसी को हम लोग एज ड्रॉप दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो अपोज कर रहा है उसको, है ना। अब पूरा का पूरा क्लियर हो गया पिक्चर। तो एक बार हम लोग लिखते हैं एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम। देखो, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम और इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। क्या बनाएंगे अभी? एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। हम ट्रांसफॉर्मर को कैसे देखते आए हैं? ट्रांसफॉर्मर को एक कोर में वाइंडिंग से लपेटा हुआ कुछ एक चीज देखा है हमने अभी तक, है ना। तो हमने अभी तक ट्रांसफॉर्मर को जो देखा, अरे देखना, अभी पूरा एक एक चीज पूरा क्लियर हो जाएगा। हमने अभी तक ट्रांसफॉर्मर को ऐसा एक कोर समझा। कोर में बहुत सारी बातें हमने की कि कोर को हम लेमिनेटेड करते हैं ताकि एडी करंट लॉस ना हो। उसको फिर पतला पतला पीसेस में काटते हैं, फिर उसमें पेंट वगैरह करते हैं या फिर इम्प्रेगनेंट से शीट लगाते हैं करके, फिर इसको इकट्ठा टाइट करके पैकिंग करते हैं। उसको हम बोलते हैं स्टेगरिंग। इस स्टेगरिंग के वजह से इसका जो मीन लेंथ है उसमें इफेक्ट आता है इंसुलेशन की वजह से, जिससे उसका नेट एरिया और ग्रॉस एरिया में डिफरेंस आता है। वो होता है हमारा स्टेकिंग फैक्टर। स्टेकिंग फैक्टर इज एरिया नेट बाई एरिया ग्रॉस। आप स्टेगरिंग कर दिए, स्टेकिंग कर दिए, स्टेकिंग करने के बाद हम इस पे वाइंडिंग लगाते हैं। और जो वाइंडिंग होता है वो या तो कॉपर का वायर लेते हैं या फिर एल्यूमिनियम का वायर लेते हैं। नॉर्मली आपका जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो कॉपर वायर से बनता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो आपका एल्यूमिनियम वायर से बनता है। जब हमने वाइंडिंग लगाया, वाइंडिंग लगाने के बाद हमने यहाँ पे एक सप्लाई सोर्स कनेक्ट कर दिया। वो सोर्स डेफिनेटली एसी टाइप होना चाहिए, ऑल्टरनेटिंग नेचर का होना चाहिए। अगर ऑल्टरनेटिंग नेचर नहीं होगा तो इसके अंदर जो फ्लक्स बनेगा वो वेरी नहीं करेगी, और फ्लक्स अगर वेरी ना करे तो कॉइल मेरा स्टैटिक है, यहाँ पे कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा ही नहीं। एक सवाल बहुत जरूरी है कि अगर मैं यहाँ पे डीसी सोर्स कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा? क्यों? अगर मैं ट्रांसफार्मर के साइड में इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा।
तो क्या होगा? जैसे ट्रांसफार्मर का कोयल में अगर मैं सेम अमाउंट का डीसी सोर्स लगा दूं, रेटिंग सेम रहे, तो क्या होगा? हम्म आवाज क्यों नहीं निकलता है तुम लोगों का? जोर से बोलो। हाँ, अच्छा मैं बोलता हूँ सुनाई देता है कि नहीं देता है? लिखिए। If I am connecting a DC source here, what will happen to primary? क्या होगा? एनीबडी? अरूप? सब बाहर ना बोलेंगे। बार्न हो जाएगा। Why? Why? कि नहीं मेरे को पसंद नहीं है डीसी, इसलिए मैं जल जाऊंगा, ऐसा करेगा क्या? क्योंकि यार मेरे को तो एसी ही पसंद है। हाँ, ऐसा तो नहीं होगा ना, कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना। क्या लॉजिक है? क्यों जल जाए? सेम अमाउंट का एसी सोर्स लगा रहे हैं, एसी का जो एवरेज वैल्यू आएगा वो कम ही होगा, आरएमएस वैल्यू कम ही होगा, डीसी का आरएमएस वैल्यू ज्यादा होगा। क्या होगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि डीसी का आरएमएस ज्यादा है, आरएमएस नहीं होता है, एवरेज होता है, और एसी में आरएमएस होता है, इसलिए। लॉजिक नहीं मिल रहा है क्या यार? एनीवन? प्रियंका, क्या होगा? अरे बाबा, आपका जो कोयल बनाते हो उस कोयल का रेजिस्टेंस कितना होता है मिनिमम? लो रेजिस्टेंस रखते हैं ना। वाइंडिंग का जितना लो रखोगे उतना अच्छा है, जीरो कर दो, आइडियल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस अगर मिनिमम होगा, इसमें से जैसे ही आप डीसी करंट लगाओ तो करंट कितना लेगा? बहुत हाई, तो जला देगा। तो एसी लगाने से क्यों नहीं जलता है? क्योंकि एसी लगाते ही क्या होता है, यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जो इसको अपोज कर रहा होता है कंटिन्यूअसली। सो मिनिमम करंट ही पास होने देता है, कोयल से मिनिमम करंट पास होने देता है जब हम एसी सोर्स लगा रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली उसको बैक ईएमएफ मिल रहा है ना। जितना V1 लगा रहे हो आप, जैसे जैसे V1 होता है उतना ही आपका E1 होता है। अपोज करके बैठा हुआ है, ट्रांसफर कौन कर रहा है यहाँ पे? सिर्फ फ्लक्स की प्रोड्यूस। ठीक, ओके। नाउ अगर बैक ईएमएफ ना रहे तो फिर बहुत हाई करंट पास करेगा, आपका कॉइल जल जाएगा। इसको रोकने वाला है ही नहीं, इतना फोर्स लगा दिए एक धक्के में तो उधर निकल जाएगा। तो कंट्रोलिंग एक तो टॉर्क चाहिए उल्टा। एनीवेज, तो हमने देखा अपने मुद्दे पे आते हैं कि भाई हमने ट्रांसफार्मर तो बना लिया, वाइंडिंग भी लगा दिया, एक सोर्स लगाया, सोर्स लगाते ही ये कुछ करंट ड्रॉ करेगा, और जैसे ही करंट ड्रॉ करेगा यहाँ पे फ्लक्स फाई प्रोड्यूस होगा, और फाई के प्रोड्यूस होते ही जो एमएमएफ बनेगा इसमें N1, और आई जो भी करंट ले रहा है उस वक्त उतना एमएमएफ, वो एमएमएफ चेंज हो रहा है, तो ये कॉयल इस एमएमएफ को रोकने की कोशिश करेगी और ये अपना एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप कर लेगी। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के चलते इधर से जितना करंट आ रहा था उतना ही करंट रिवर्स हो जाएगा और करंट को मिनिमाइज कर देगा, तो कॉयल मेरा जलेगा नहीं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे करंट बहाएगी सो दैट एमएमएफ जो है इसको बैलेंस कर सके। सेम एमएमएफ मेरे सेकेंडरी कॉइल में भी लिंक कर रही होगी और उसके चलते यहाँ पे भी एक E2 इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, लेकिन हमने क्योंकि लोड कनेक्ट नहीं किया है तो कोई करंट पास नहीं हो रहा होगा। अब क्या है कि हमने देखा यहाँ पे जो कॉइल है वो प्रैक्टिकल कॉइल है, तो उसका एक रेजिस्टेंस रहेगा और उसका एक इंडक्टिव इफेक्ट आता है जिसको हम लोग रिएक्टेंस से दिखाते हैं, R1 एंड X1 बनाते हैं हम। I1 करंट इससे जो पास होता है वो नो लोड कंडीशन पे, जब हम लोड लगाते ही नहीं है तो यहाँ पे ना तो रिएक्टेंस दिखेगा ना रेजिस्टेंस दिखेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस तभी आएगा जब करंट पास करेगा। करंट पास नहीं है तो फिर इस रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का कोई काम है नहीं, तो मेरा V2 और E2 जो है वो बराबर रहेंगे, और V2 एंड E2 आर ऑलवेज इन फेज कंपोनेंट।
V2 और E2 always in phase component. E1 and V1 are always anti phase component, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहते हैं दोनों. जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, दिस फ्लक्स and V1 are 90 degree out of phase. This flux will lag the V1 because of this inductive effect of this coil. I1 जो है वो लैग करेगा, तो phi और I दोनों सेम फेज पे होते हैं. जो इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 आएगा वो इस फ्लक्स से और 90 डिग्री लैग कर जाएगा, फ्लक्स से 90 डिग्री लैग कर जाएगा, क्योंकि फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं और इंड्यूस्ड ईएमएफ पीछे चलता है. तो मेरा V1 और E1 जो है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गया. देखो पूरा का पूरा चैप्टर एकदम रट्टा हो गया हमारा, है ना. अब R1 और X1 जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, उसका इफेक्ट क्या होगा कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होंगे और वो वोल्टेज ड्रॉप होगा I1 R1 और यहाँ पे होगा I1 X1. इस X1 को ना हम लोग JX1 लिख सकते हैं. J से कोई मतलब नहीं बनता, ये सिर्फ हमको दिखाता है कि ये एक क्वाड्रेचर पैरामीटर है, तो फेजर कॉम्प्लेक्स नंबर. अब क्या है कि ये जो I1 कंपोनेंट है प्राइमरी का, जब नो लोड पे है, नो लोड पे है, तो ये सबसे पहले नो लोड कंडीशन पे एक करंट कंपोनेंट लेगा, वो होगा मेरा I म्यू कंपोनेंट, जिसको हम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट बोल रहे हैं. फ्लक्स फाई को प्रोड्यूस करने के लिए उसको चाहिए एकदम मिनिमम करंट. साइमल्टेनियसली जब जैसे ही ये फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पे एडी करंट हिस्टेरिसिस लॉस आते हैं और उस लॉस के वजह से यहाँ पे IW कंपोनेंट भी लेता है, जो IW इन फेज कंपोनेंट होता है मेरा V1 का. सब क्लियर हो रहा है ना. V1 के साथ इन फेज कंपोनेंट होता है और इसी को हम लोग एक्टिव कंपोनेंट भी बोलते हैं, वाटफुल कंपोनेंट भी बोलते हैं. I म्यू को हम लोग वाटलेस कंपोनेंट बोलते हैं. हो गया. जब तक मेरा सेकेंडरी ओपन है, प्राइमरी में इतना ही करंट पास होगा और कुछ करंट आएगा ही नहीं, और ये करंट बहुत ही मिनिमम है, और इस करंट को हम लोग I1 के बदले I0 से दिखाते हैं. I0 जो करंट होता है वो होता है मेरा I म्यू और IW का वेक्टर सम होता है. जब हमने इसी चीज को फेजर में दिखाया तो हमने ऐसा दिखाया कि V1 जो है वो y एक्सिस पे है और उसका 90 डिग्री लैग कर जा रहा है I म्यू, और I म्यू के साथ फाई जो है वो इन फेज कंपोनेंट है. फाई से 90 डिग्री लैग कर जाता है मेरा E1, तो E1 और V1 आउट ऑफ फेज कंपोनेंट होते हैं. अगर यहाँ पे I1 R1 और I1 X1 ड्रॉप ना होता तो V1 और E1 सेम कंपोनेंट हो जाते हैं, एंटी फेज. I म्यू के साथ एक IW कंपोनेंट आता है वर्किंग, और इन दोनों का जो वेक्टर सम होता है वही मेरा प्राइमरी नो लोड करंट होता है और उसको हम बोलते हैं I0. I0 और V1 के बीच पे का जो एंगल होता है उसको हम लोग फाई नॉट बोलते हैं, और ये फाई नॉट इज माई नो लोड पावर फैक्टर एंगल. नो लोड पावर फैक्टर एंगल होता है. तो नो लोड पावर फैक्टर जो होगा वो मेरा कॉस ऑफ फाई नॉट होगा. तो हम लोग देख सकते हैं कि नो लोड पावर फैक्टर एंगल जो है ये बहुत ही कम है. पावर फैक्टर बहुत ही पुअर पावर फैक्टर है, क्योंकि फाई नॉट बहुत बड़ा है. ये फाई नॉट बड़ा होने का कारण ये है कि मेरा जो वर्किंग कंपोनेंट है या फिर जो मेरा लॉस कंपोनेंट है, कोर लॉस कंपोनेंट, ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू I म्यू. और I म्यू इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल कंपोनेंट एज कंपेयर टू आवर लोड कंपोनेंट. अभी तक कोई लोड कंपोनेंट आया ही नहीं है ना, यहाँ तक ये नो लोड कंडीशन में. क्लियर है. अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लोड लगाते हैं, और जब लोड लगाएंगे ZL, उस लोड लगाते ही इससे कुछ एक I2 करंट पास होगा. जब मेरा I2 करंट पास होता है ZL से, तो यहाँ पे मुझको सेकेंडरी का रेजिस्टेंस और सेकेंडरी का इंडक्टेंस दोनों दिखने लग जाते हैं, क्योंकि इस I2 के वजह से ये यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में एक I2 R2 का ड्रॉप आता है और इसमें JI2 XL X2 का ड्रॉप आता है.
एम आई क्लियर? अब दोनों पिक्चर में आ गए, I2 R2 एंड X2। ये पूरा का पूरा एंटायर मेरा क्या कहते हैं इसको, कंप्लीट सर्किट है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे आई नॉट आई डब्ल्यू आई म्यू हमने अभी तक दिखाया नहीं है सर्किट पे। तो मैं अगर आई नॉट को दिखाना चाहता हूं, इसको मैं इधर ले लेता हूं, आई नॉट को दिखाना चाहता हूं तो वो आई नॉट कहाँ पे होगा? क्या R1 से पहले दिखाऊं कि बाद में दिखाऊं, बोलो। यहाँ पे कि यहाँ पे? तो पहले होगा। यहाँ पे देखो, ड्रॉप जो है आपका कॉइल का, सबसे पहले तो आपका कॉइल में करंट दिया गया ना, फर्स्ट तो करंट कॉइल में गया, जितना कॉइल में करंट गया उसके वजह से जो ड्रॉप हुआ, उसके बाद ना ये आई नॉट का सवाल आता है। आपका कॉइल में तो पूरा का पूरा आई करंट ही पास हो रहा है, चाहे वो आई नॉट हो, I1 हो, I1 डैश हो, जो भी है, कॉइल में पूरा करंट जा रहा है। तो कॉइल का प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस है, प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस है, उसमें से जो करंट पास हो रहा है, वो करंट एंटायर जो प्राइमरी का करंट है वही होना चाहिए ना, I1 ही होना चाहिए ना, I1 माइनस आई नॉट होना चाहिए। ये क्या रेजिस्टेंस दिखा रहे हो? ये आपका प्राइमरी कॉइल का ही रेजिस्टेंस दिखा रहे हो यहाँ पे। तो प्राइमरी कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, उसके थ्रू कौन सा करंट जाना चाहिए? I1 करंट जाना चाहिए, है ना। तो I1 करंट ही अगर जाना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे इस ब्रांच को दिखाता हूँ तो इधर से तो एक ब्रांच में दिखा दूंगा इक्विवेलेंट में कि एक करंट पास हो जा रहा है, मतलब R1 से पूरा करंट नहीं जा रहा है मेरा। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है, इस ब्रांच को क्या बोलते हैं? शांट ब्रांच। तो ये जो शांट ब्रांच है, ये मुझको X1 R1 के बाद दिखाना है, क्योंकि R1 पे जो ड्रॉप हो रहा है, R1 मतलब क्या है? कोयल पे जो ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज, तो कोयल से तो पूरा I1 करंट ही जा रहा है ना, तो I1 R1 ड्रॉप होगा ना। तो I1 R1 को दिखाना है, पूरा दिखाना है मुझको। X1 पे जो ड्रॉप हो रहा है लीकेज के लिए, लीकेज रिएक्टेंस के लिए, तो वो तो I1 करंट के लिए ही हो रहा है पूरा, तो I1 X1 दिखाना है। अगर मैं इस ब्रांच को उठा के यहाँ पे रख देता और यहाँ पे मैं अगर बोलता कि आई नॉट करंट इससे निकल जा रहा है शांट ब्रांच पे, इसका मतलब R1 पे जो ड्रॉप होता वो I1 माइनस आई नॉट इंटू R1 हो जाता। तो ड्रॉप मेरा कम दिखाता, मैं वो एग्जैक्ट नहीं होता, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूँ। और एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम में देखो, अभी तक सारा कंपोनेंट हमने कंसीडर कर लिया, तो ये रहेगा मेरा आई नॉट, और रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा मेरा आर नॉट, इंडक्टेंस जो दिखा रहा हूं मैं वो होगा मेरा एक्स नॉट, आई आर नॉट से जाएगा मेरा आई डब्ल्यू, एक्स नॉट से जाएगा मेरा आई म्यू। हो गया सारा कंपोनेंट इसमें, देख लो पूरा ट्रांसफॉर्मर आ गया। देखो, so this is called exact equivalent circuit of transformer। अब यहाँ पे जैसे हमने लोड लगाया, लोड लगाने से I2 R2 एंड I2 X2 ये दोनों ड्रॉप नजर आए। साइमल्टेनियसली इस I2 के वजह से यहाँ पे एक MMF पैदा हो गया, N2 इंटू I2। वो MMF इस MMF को घटाने लगा, इस फाई को चेंज करने लगा, तो N1 इसको बचाने के लिए N1 I1 डैश बोल के एक कंपोनेंट इधर से फ्लो कराया MMF एज पर लेंजेस लो। इस I1 डैश जो है वो I2 के प्रोपोर्शनेट था, तो यहाँ पे जो मेरा प्राइमरी करंट था, वो प्राइमरी करंट पहले I नॉट था, अभी कितना हो गया है? I1 बन गया है। I1 इज I1 डैश प्लस I नॉट। अभी का जो करंट पास हो रहा है यहां से, ये मेरा I1 है ना। लोड आने के बाद कंपोनेंट चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, चलो इसको बना लो पहले।
ड्रॉ करें। ड्रॉ इट फर्स्ट। सब लोग अपने से सोच सोच के बनाओ, देख देख के मत बनाओ, सोच के बनाओ क्या बना रहे हो, तो एकदम क्लियर हो जाएगा और पढ़ना ही नहीं पड़ेगा फिर ट्रांसफॉर्मर। एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड। हो गया एवरीवन? ठीक है। ये मेरा N1 था, ये मेरा N2 कॉइल है। I2 is proportional to what? Sorry, I1 dash is proportional to your I2. I0 को अगर नेग्लेक्ट कर दे तो मेरा I1 विल बी प्रोपोर्शनल टू I2 होगा, और उसी से हम लोग टर्न्स रेशियो एंड ट्रांसफर रेशियो दोनों डिफाइन करते हैं, K एंड A, है ना। तो K और A हमको पता है। K इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं E2/E1 इज इक्वल टू V2/V1, और क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी होता है तो इसको हम लोग I1/I2 लिख देते हैं। दिस इज व्हाटएवर। सिमिलरली उसका ऑपोजिट अगर होता है तो रेसिप्रोकल को 1/A1 लेते हैं। ये हो गया। अब हम बनाते हैं कि एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट, लिखो, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेफर्ड टू प्राइमरी, रेफर्ड टू प्राइमरी। बनाओ सब लोग, बना के बोलो। रेफर्ड टू प्राइमरी बन, करना पड़ेगा। इसका मतलब सेकेंडरी से रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों को उठा के मुझको प्राइमरी में डाल देना है, और उसको एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम रखना है, सो दैट कि जहां पे जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो नजर आए, जितना करंट जा रहा है वो नजर आए मुझको।
चलो देखो मेरे साथ ही बना लो, टाइम कम है। सो सबसे पहले हमारा प्राइमरी का रेजिस्टेंस है विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी बना रहे एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम। तो ये मेरा प्राइमरी रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद मेरा प्राइमरी का लीकेज रिएक्टेंस दिखा दिया, है ना। प्राइमरी करंट जो होगा I1, उसके वजह से I1R1 ड्रॉप होगा, I1X1 ड्रॉप होगा, और फिर एक कंपोनेंट मेरा I0 निकल जाएगा यहां से। I0 कंपोनेंट नो लोड करंट जो है वो हमेशा रहता है, वो यहां से निकल गया। R0 X0, R0 से IW कंपोनेंट, X0 से I म्यू कंपोनेंट, इतना चला जाएगा। सेकेंडरी साइड में जो लीकेज रिएक्टेंस और जो रेजिस्टेंस था उसको अभी हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी साइड में शिफ्ट करा दे रहे हैं, है ना। तो जब मैं शिफ्ट कराने वाला हूं तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस आ जाएगा R2, और यहाँ पे वो रिएक्टेंस आ जाएगा X2। अब पहले वो R2 और X2 था यहाँ पे, जब मैं इसको उठा के इधर ला रहा हूं तो R2 क्या बन जाएगा, R2 डैश, और डैश R2 डैश का वैल्यू कितना होगा, R2 को मैं दिखाऊंगा R2 डैश से, और R2 डैश का वैल्यू कितना होना चाहिए, बोलो पटक करके बोलो। R2 डैश का वैल्यू कितना होना चाहिए, जब मैं सेकेंडरी से उठा कर प्राइमरी में रख रहा हूँ, R2 डैश का वैल्यू कितना होना चाहिए, A स्क्वायर R2। ए स्क्वायर R2, ए स्क्वायर R2। जब मैं X2 को उठा के R यहाँ पे रख रहा हूँ तो X2 डैश बन जाएगा, और X2 डैश का वैल्यू कितना होना चाहिए, ए स्क्वायर X2। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि ये यहाँ पे हमने लोड लगाया था, यहाँ पे हमने लोड लगाया था ZL, और इस ZL को भी उठा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी बना रहा हूँ। तो सेकेंडरी का जो लोड है पूरा का पूरा सारा पैरामीटर उठा के मैं प्राइमरी रख रहा हूँ। तो ZL को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ZL का वैल्यू कितना होगा, ZL डैश इक्वल टू, ये ZL रहेगा। प्राइमरी सेकेंडरी में आप कुछ बचा नहीं है ना, तो इसको उठा दिया और इसको मैं ZL डैश बोल देता हूँ। ZL डैश का वैल्यू कितना होगा, ए स्क्वायर इंटू, ठीक है, बोलो। तो देखो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गया है। अभी मैग्नेटिक पार्ट गायब, मैग्नेटिक कपलिंग पार्ट गायब, क्योंकि वो मैग्नेटिक कपलिंग का वजह से जो जो काम हो रहा था वो सारा हमने यहाँ पे इंडक्टेंस के थ्रू दिखा दिया है, और सारा पैरामीटर को शिफ्ट कर दिया है प्राइमरी में। तो यहाँ पे देखते हैं, ये I1 करंट आएगा प्राइमरी से, यहाँ पे मैंने V1 वोल्टेज लगाया है। V1 का अगर मैं बोलता हूँ इधर माइनस है और इधर प्लस है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन पे बोलता हूँ उस वक्त, क्योंकि इसका तो प्लस माइनस कुछ होता नहीं है, तो उस वक्त ऐसा है। तो इसको थोड़ा इधर दिखाता हूँ। X1, और X1 को ना मैं JX1 लिख देता हूँ, X2 को मैं JX2 लिख देता हूँ।
x1 तो x1 ही है, जे x2, ठीक है। जे लगाने में कोई आपत्ति नहीं है, उससे मैग्नीट्यूड में मेरा कोई हेम्पर हो नहीं रहा है। सो V1, और यहाँ से करंट पास करेगा I1। ये I1 का जो वैल्यू है वो मुझको मिलेगा I1 डैश प्लस I0 और IW प्लस, है ना? या फिर मैं I1 डैश प्लस I0 ही लिख देता हूँ। ये I करंट इसके थ्रू आ रहा है, यहाँ पे ड्रॉप होगा I1 R1, यहाँ पे ड्रॉप होगा JI1 X1, और उसके बाद वो करंट यहाँ पे आएगा, तो करंट सेम I1 करंट ही आया, थोड़ा सा ड्रॉप हो गया, और उस ड्रॉप को अगर माइनस कर दूं मैं, तो मुझको यहाँ पे क्या मिलेगा, E1 मिलेगा। यहाँ पे E1 मिला, उस ड्रॉप को V1 माइनस दिस ड्रॉप E1 दे रहा है। अगर V1 इधर पॉजिटिव है तो E1 का इधर पॉजिटिव है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट में। ये करंट I1 यहाँ पे आया, आने के बाद I0 कंपोनेंट इधर चला गया, और इस साइड से कौन सा कंपोनेंट जाएगा, I1 डैश बच गया। अब ये I1 डैश का वैल्यू कितना था, जो सेकेंडरी कॉइल में जा रहा था वो I2 के बराबर था, तो I1 का वैल्यू कितना होगा, I1 डैश का वैल्यू बताओ I2 के टर्म पे। I1 डैश का वैल्यू बताओ I2 के टर्म पे। ये I1 डैश कितना होगा, कितना करंट दिखाना चाहिए मुझको यहाँ पे। अरे बाबा, इतना टाइम तो लगता है। I1 डैश क्या है? I1 डैश I1 होगा। हाँ, I1 डैश क्यों आया, लोड कंपोनेंट है ना, लोड कंपोनेंट है ना, किसके प्रोपोर्शनल है, सेकेंडरी करंट के। तो प्राइमरी करंट बाई सेकेंडरी करंट कितना होता है, इक्वल टू प्राइमरी करंट बाई सेकेंडरी करंट कितना होता है। अरे यार, के होगा, के। क्या होगा ना, I1 बाई I2 इज इक्वल टू व्हाट, के। हाँ, सो ये I1 तो होता नहीं, ये I1 डैश ही होता है ना, प्रोपोर्शनेट। सो I1 डैश कितना होगा, I1 डैश विल बी इक्वल टू के इंटू I2। समझ में आ रहा है? जो सेकेंडरी में जो करंट जा रहा था, सेकेंडरी के रेजिस्टेंस से, सेकेंडरी के रिएक्टेंस से जो करंट जा रहा था, वो कितना करंट था, I2 करंट था। जब वो सेकेंडरी में था तो इसका रेजिस्टेंस कितना था, R2 था। अब मैं इसको प्राइमरी में दिखा रहा हूँ, R2 डैश बना के, तो इसमें करंट कितना दिखाना है मेरे को, उसका प्रोपोर्शनेट K इंटू I2 दिखाना है। I1 डैश करंट जा रहा है, क्लियर? और ये E1 जो है, यहाँ पे देखो इस साइड में सेम है ना, E1 ही है, ये तो इसी ब्रांच पे है, E1 है। और E1 का वैल्यू कितना है, E1 इक्वल टू, E1 इक्वल टू V1। जोर से बोलो, E1 इक्वल टू, सो E1 इक्वल टू E2 बाई के, और A E2, E1 इक्वल टू कितना है, E2 जितना था आपका R2 में, इस साइड अगर मेरा सेकेंडरी रहता, देखो ये सेकेंडरी होता तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस होता, और यहाँ पे इसका रिएक्टेंस दिखाता, यहाँ पे वो ZL दिखता,
ये ऐसा दिखता हमको, दिखता ना, R2 X2, और ये E2 कहाँ पे आया था, यहाँ पे E2 आया था। E2 यहाँ पे आया था R2 से पहले। उसी चीज को, उसी वोल्टेज को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, E1 मिल रहा है। E1 का वैल्यू कितना है अभी, क्लियर, समझ में आ रहा। ये सारा चीज वही है जो हम करते आए हैं। अब यहाँ से इतना यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा कितना भाई, यहाँ पे अभी ड्रॉप होगा I1 डैश इंटू R2 डैश एंड I1 डैश इंटू JX2 डैश, इतना ड्रॉप होगा। और उस ड्रॉप को माइनस करने के बाद यहाँ पे मुझको V2 मिलेगा टर्मिनल पे। और ये V2 नहीं होगा, कितना होगा, V2 डैश होगा, क्योंकि हम प्राइमरी साइड पे दिखा रहे हैं। तो V2 डैश का वैल्यू कितना होना चाहिए, V2 डैश विल बी इक्वल टू कितना होगा बताओ, V2 by V1 equal to K. So V2 equal to A into V1 V1 होगा। डैश, V2 नहीं, V2 डैश कैसे होगा, यहाँ पे होने से ये V1 डैश हो गया, सॉरी, प्राइमरी वोल्टेज दिखा रहा है ना, सेकेंडरी के टाइम पे A इंटू V2, A इंटू आ गया टर्मिनल वोल्टेज भी का प्रोपोर्शनेट वोल्टेज, समझ में आया। इसको हम हटा देते हैं, देखो सोचो बताओ। तो दिस इज द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी साइड। तो जब मैं सेकेंडरी का रेजिस्टेंस, सेकेंडरी का रिएक्टेंस और सेकेंडरी का इंपीडेंस को मैं जब शिफ्ट कर रहा हूं सेकेंडरी से प्राइमरी साइड, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब मैं सेकेंडरी करंट को प्राइमरी साइड में ला रहा हूं तो ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और जब मैं सेकेंडरी वोल्टेज को, सॉरी, ए से डिवाइड कर रहा हूं, ये नहीं, इसको मैं ए बना देता हूं ना, सब ए के टर्म पे लिखे हैं तो ए ही लिखते हैं। तो सेकेंडरी करंट को जब मैं प्राइमरी करंट, प्राइमरी सर्किट पे दिखा रहा हूं तो मैं इसको ए से डिवाइड कर दे रहा हूं। सेकेंडरी वोल्टेज को जब मैं प्राइमरी में दिखा रहा हूं तो ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो इम्पीडेंस, 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 रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस while shifted from secondary to primary multiplied by a square, multiply by a square। प्राइमरी सर्किट में दिखाना है तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, और करंट और वोल्टेज में ए स्क्वायर की जगह पे ए आएगा, सिर्फ ए। ए से करंट होगा तो डिवाइड करेंगे, वोल्टेज होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। वो हमको ट्रांस रेशियो का अगर फॉर्मूला पता है तो हम इजीली लिख सकते हैं। बोलो भाई, क्लियर हो गया फंडा पूरा। अभी सिमिलरली आप लोग बना सकते हो, अगर
सिमिलरली हम लोग प्राइमरी का सारा रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट सबको हम लोग सेकेंडरी में शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। सिर्फ क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। प्राइमरी रेजिस्टेंस शिफ्टेड टू सेकेंडरी, प्राइमरी रेजिस्टेंस शिफ्टेड टू सेकेंडरी क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी रेजिस्टेंस शिफ्टेड टू सेकेंडरी, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी जब दिखाऊंगा मैं, पकड़ लो यही है, यही होगा। सेकेंडरी में दिखाने से सेम सर्किट तो सेम रहेगा, कंपोनेंट सेम रहेंगे, है कि नहीं। सिर्फ क्या चेंजेस आएंगे? नाम में चेंजेस आएगा। नाम में कैसे चेंजेस आएगा? ये पार्ट उठ के यहाँ पे आ जाएगा, हाँ। और जो रेजिस्टेंस होगा प्राइमरी का रेजिस्टेंस जो आप शिफ्ट करोगे यहाँ पे सेकेंडरी साइड में, वो हो जाएगा R1 डैश। R1 डैश का वैल्यू कितना होगा सेकेंडरी में? R1/A²। सेकेंड प्राइमरी को जब सेकेंडरी लेके जाते हैं तो डिवाइड डिवाइड होता है। करते हैं ए स्क्वायर से। X1 डैश कितना हो जाएगा? JX1 डैश विल बी इक्वल टू JX1/A स्क्वायर। लोड तो है ही नहीं, लोड तो उधर ZL, तो ZL ही रह जाएगा, है ना, सेकेंडरी साइड में। वोल्टेज प्राइमरी का जो वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज, वो आपको यहाँ पे दिखाना है, वो V1 डैश होगा, तब V1 डैश दिखाओगे। और वो V1 डैश का वैल्यू कितना होगा? V1 डैश का वैल्यू कितना होगा? V1/A होगा। V1/A स्क्वायर। वोल्टेज और करंट में ए कंपोनेंट से होता है, स्क्वायर आता है सिर्फ किसमें? इंपीडेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस में। वोल्टेज एंड करंट ए से होता है, लिनियर है। तो V1 डैश विल बी इक्वल टू क्या रे? मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा? फैक्टर कौन सा है? ए है। मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा? V1/, वो बुझी पैसू से नहीं होने वाला है, वो याद रहना है। और ऐसा होना है कि वो फिंगर टिप्स पे रहे। इसको खुद से बैठ के बनाओ कि हो क्या रहा है। एक बार जाके ना, एक बार पूरा का पूरा सर्किट जो है, अच्छा ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट इधर आ गया, ऐसा हो गया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो इतना वैल्यू दिखा है। वो 2-4 बार जब आप खुद से लिखोगे, बनाओगे, तब जाके सेट हो जाएगा, है ना। तो E2 जो होगा, E1 जब उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा? E1 डैश। E1 डैश का वैल्यू कितना होगा? E2/A। So E1 dash will be E2/A। यहाँ पे A इंटू E2 है, तो उस साइड जाएगा तो E1 डैश विल बी सॉरी E2 नहीं, E1/A हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सारा चीज शिफ्ट करेंगे। ZL तो उसी साइड में है, उसको और कुछ करना नहीं है। फिर इक्विवेलेंट सर्किट बना दिए, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं? देखो अभी शिफ्ट तो हो गया है, सारा रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, लोड सारा इधर लेके आए हैं, बट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे, तो कैलकुलेशन करने में फिर से I0 बीच पे आ रहा है, दिक्कत हो रहा है ना। तो इसको उठा के मैं इधर लेके आ जाता हूँ,
इसको बोलते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आई नॉट कंपोनेंट बहुत छोटा है, तो आई नॉट की वजह से यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो भी बहुत छोटा ही होगा। तो उतना छोटा ड्रॉप है तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आई नॉट को उठा के मैं इधर लेके आ जाता हूँ, उससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आई नॉट को अगर मैं उठा के इस ब्रांच को उठा के यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, उससे मेरा बाकी और कुछ फर्क नहीं पड़ा है। मैं नेग्लेक्ट कर दे रहा हूँ आई नॉट की वजह से जो ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये I1 के जगह पे I1 डैश हो गया बस। अब क्या है कि ये रेजिस्टेंस R1 डैश, R2 डैश और R1 ये दोनों सीरीज में दिख रहा है मेरे को, है ना। तो इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, देख लो। तो ये रेजिस्टेंस हट जाएगा। सिमिलरली ये X1 और X2 सीरीज में दिख रहा है इंडक्टेंस, दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, X2 डैश हो जाएगा, तो ये भी उठ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब सर्किट जो है मेरा बड़ा ही सिंपल सर्किट बन गया कि एक रेजिस्टेंस एक इंडक्टेंस, और ये जो रेजिस्टेंस बना इसको मैं बोल दूंगा R01, ये इंडक्टेंस जो बना इसको मैं बोल दूंगा X01, और ये रहा दिस कम्स एज योर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। और सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करेंगे, हम बोल रहे हैं कि भाई आई नॉट बड़ा छोटा है, इस लोड कंपोनेंट के मुकाबले में छोटा है, हटा दो इसको, खत्म। तो ये और सिंपल बन गया, मतलब एक रेजिस्टेंस एक इंडक्टेंस और लोड, एक सोर्स लगा दिया एसी, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा ट्रांसफॉर्मर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? तो ये एक ट्रांसफॉर्मर को, इस पूरे चीज को हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल सर्किट पे दिखाया, और उस इलेक्ट्रिकल सर्किट पे क्या है, एक एसी सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस है, और एक मेरा लोड है, बस। तो दिस इज एन सिंपल सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एंड दिस इज द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या किया, शांत ब्रांच को उठा के मेरा जो सीरीज प्राइमरी ब्रांच पैरामीटर से उससे पहले रख दिया, और सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में शांत ब्रांच को ही गायब कर दिया, करके एकदम सिंपल सर्किट बना दिया। अब इसके ऊपर हम लोग बहुत सारा एनालिसिस कर सकते हैं। बोलो, क्लियर? तो आज के लिए इतना, यहाँ पे खत्म करते हैं। और एक तो नेक्स्ट वीक में ट्रांसफॉर्मर पूरा खत्म हो जाएगा, उसके न्यूमेरिकल कर लेंगे, और फिर हम सिंक्रोनस या फिर इंडक्शन, क्या पकड़े, इंडक्शन की सिंक्रोनस, नेक्स्ट सिंक्रोनस। सिंक्रोनस से सिंक्रोनस, उसके बाद इंडक्शन। ইন্ডাকশন স্যার, সিনক্রোনাসটো অলপ আছে ভিডিও, ইন্ডাকশনটো নাই। तुम आगे आगे दौड़ रहा है इसीलिए, हाँ।